बिस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ और अपने एक बहुत करीबी साथी के साथ इसरार अहमद में हाजिर हूँ। सैयद अब्दुल्ला अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाई कोर्ट के लॉयर हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं, एक्रेडिटेड मीडिएटर हैं और मेरी टाइम अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा पकड़ रखते हैं। और इसके साथ साथ हमारा सबका एक जो अभी बर्निंग इशू है, पैलेस्टाइन जो वार गजा में और फ़लस्तीन में चल रही है, उस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि ये आएँ और हमें थोड़ा सा बताएं उसके बारे में आसान ज़बान में। और इनको मौका देने से पहले मैं ये भी बताऊं कि बेसिकली मैं भी मोटिवेट हुआ अब्दुल्ला भाई की एक टॉक देख के, जिसके बाद फिर मैंने अपनी जो जलती हुई चिंगारी थी उसको और ज़्यादा बढ़ाया और मैंने कहा कि चलो मैंने भी इस पे काम करना है। सो थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल्ला भाई। ओवर टू यू, थोड़ा थैंक सा यू। अपना तारुफ और उसके बाद फिर हमें तफसील से बताएं कि ये फ़लस्तीन वाला बेसिकली हिस्ट्री इसकी क्या है और क्या सूरत हाल है अभी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसरार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब आज बुलाने के लिए, आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर और आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। आपसे वैसे अक्सर मुलाकात होती रहती है एलएएस के इवेंट्स के ऊपर, और वैसे जो आप माशाल्लाह डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं हमारे साथ भी। तो आज का जो इशू आपने रखा था, इट्स क्वाइट रेलेवेंट। एंड इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टॉक जो है मैं करना चाहूंगा, वो जरा सा इसको होलिस्टिक सा रखूंगा, ताकि बिल्कुल सर। वी कैन cover as much ground as we can in the limited time that we have. एंड वही जो आपने बात की कि आई लाइक टू स्टार्ट विद जो पैलेस्टीनियन इशू है वो है क्या। इज देयर अ लैंड, इज देयर अ पीपल, व्हाट इज इजराइल, व्हाट इज दैट द बेसिस ऑफ दैट एंटिटी, एंड वेयर डू वी स्टैंड टुडे। और ये मैं पूरी आई टेक इट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम what is Palestine in the historical context. So, Israelis often use this term that Palestine was nothing. It was a land without a people for a people without a land. This is a term that they use वाह। quite a lot, which is absolutely false. Why? Because there has always been a Palestine. Palestinians are descendants of the Canaanite peoples, which were settled in the Levant region, which comprises of modern day Gaza, Palestine, Lebanon, and a bit of Syria. And those Canaanites then go on to, flourish in that region. Even at the time of the Romans, when they come, this region is called the Syria Palestina, and then Palestina Prima in the Byzantine age. So Palestine, the word Palestine with that land has always been there. So this idea that this nation has come out of thin air and wasn't there since 1948, it's completely false. Even the Greek historian Herodotus, in his work The Histories, refers to a place in this region in the Levant between Phoenicia and Egypt called Palestina. So the place has always been over there. If I were to go forward, and I would say that Palestine, the name as we know it today, is the Arabicized version of the name Palestine. When the Rashidun Caliphate ultimately conquered the Levant, they basically Arabicized that word to Palestine as a region of the Bilad al-Sham, वाह। हम्म। so this is where we stand today. Palestine has then remained under direct Muslim rule under the Umayyads, under the Abbasids, Turunids, Ikhshidis, Seljuks, Fatimids, Ayyubids, till the Ottoman era and the World War, as we know today. So when we start to reach the Great War era, that is where the problem starts to occur. Why? Because we see a lot of Zionism and Christian Zionism gaining ground in Europe and the European psyche altogether. And there is this movement which increasingly starts to call for a place, or as the Balfour Declaration puts it, a national home for Jewish people. So this is basically where when Arthur Balfour writes to अब्दुल्ला भाई, Lord I'll I'll Rothschild and he I'll says, I'll just I'll just stop you here. पहले तो yeah, क्या कमाल से आपने उसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मैं एक आई रिक्वेस्ट यू कि हम ज्यादातर इसको उर्दू में करें ताकि लार्जर एक ऑडियंस उसको समझ सके। और ये जो वेलफेयर डिक्लेरेशन वाला जो हिस्सा है,
इसको आई रिक्वेस्ट कि अगर आप बहुत अच्छे से ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये क्या था, और उसके बाद एक बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने जी जो यूज़ किया, क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म, आई रिक्वेस्ट कि हम इसको भी थोड़ा-सा एलैबोरेट अगर कर लें। बिल्कुल ठीक हो गया जी। बेलफोर डिक्लेरेशन बेसिकली आपका एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो इजहार कर रहे होते हैं लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड जो कि बरतानिया की और यूरोप की बहुत बड़ी जूश फैमिली है, जो कि बैंक्स, जो कि काफी ज्यादा कॉन्ग्लोमरेट्स कंपनीज चलाती है, वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स, और क्या कहते हैं, काफी फेमस भी है। उनको ये लिखा जाता है कि भाई हम आपके जो जायनिस्ट एस्पिरेशंस हैं, जो आप चाह रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, और हम फलस्तीन का जो इलाका है जो अब हमारे जेर दस्त है, उसके अंदर आपके लिए एक जोश होमलैंड बनाएंगे, और हम यहूदी आपको रियासत। सपोर्ट करते हैं आप हर एक्ट के अंदर। तो वहां से बुनियाद रखी जाती है इसराइल की, या इसराइली एंटिटी की, जो भी है वो। और जी, फिर हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यूज फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वो आहिस्ता आहिस्ता करके जमा होने लग जाते हैं फलस्तीन के अंदर। और फिर ये बात आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते इस हद तक ज्यादा बढ़ जाती है कि बाय 1948 आपके जूस जो है वो मिलिशियाज फॉर्म कर लेते हैं, और वहां से जो मुकामी फलस्तीनी आबादी है उसको टारगेट करके मिलिशियाज के जरिए उनको निकालने लग जाते हैं, उनको धकेलने लग जाते हैं अपनी ही जमीन से। सो मच सो कि फिर आपका ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years आपका एक पूरा एक इवेंट होता है जिसको फलस्तीनी याद करते हैं नकबा के नाम से। 7,50,000 फलस्तीनी फोर्स्ड टू लीव द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन, और उनके जो गांव हैं, तकरीबन मोर देन 55 विलेजेस एंड टाउन्स, उनको बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। सो एथनिक इट इज अ क्लींजिंग जिसको क्लेंजिंग हम कहें, ऑफ नकवा। जी, और उनकी जो शनाख्त है उसको खत्म किया जाता है, और उनसे उनका लैंड छीना जाता है, और उनको धकेल दिया जाता है अपनी जमीन से बाहर। और ये एक और वजह भी है कि आज आप जॉर्डन, लबनान, मिस्र के अंदर जब देखते हैं तो काफी बहुत बड़ा डायस्पोरा फलस्तीनियों का आपको मिलता फलस्तीनी है, जो कि रेफ्यूजी। आज तक वहां पे रेफ्यूजीज की अंदर आपका उनरवा जो है, जो यूनाइटेड नेशंस का विंग है जो कि सारे रेफ्यूजीज को देखता है फलस्तीनियों को, उसके तहत आज वो रह रहे हैं वहां पे। और वो राइट ऑफ रिटर्न की अक्सर बात किया करते हैं कि हम लोगों को राइट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए अपनी जमीन की तरफ, जो कि अगेन इसराइल डिनाई करता है उनको। तो ये आज जहां पे हिस्टोरिकली खड़ा हुआ है, ये रियलिटी है जी। दूसरे सवाल पे जाने से पहले मैं सिर्फ ये जो राइट ऑफ रिटर्न आपने कहा है, जो जी इसराइल की लीगल क्या उसको कहना चाहिए, जुरिस्प्रूडेंस है, वो ज्यूज को अलाउ करती है राइट ऑफ रिटर्न, वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन पैलेस्टीनियंस को अलाउ नहीं करती कि वो अगर नेबरिंग कंट्रीज में भी हो तो वापस नहीं आ सकते, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसी है जी। ये काफी कहा जाता है कि इसराइल जो है इट इज ये इजरायली गवर्नमेंट अक्सर कहा करती है कि वी आर, हम लोग वेलकम करते हैं सबको, और हम अरब्स भी हमारे साथ रहते हैं। ये काफी वो एडवर्टाइज करते हैं कि जी, हमारा जो स्टेट है उसके अंदर अरब एंड वी आर ओपन टू ऑल। बट द रियलिटी इज 2018 के अंदर इनका जो कैनेसेट है, या इनका आप पार्लियामेंट समझ लें, जी, उसने बकायदा लॉ पास किया था कि हम लोग एक जूश स्टेट है। और पहले भी ये लोग 48 में बनने के बाद इन्होंने ये स्टैब्लिश कर लिया था कि राइट ऑफ रिटर्न ज्यूज का है, ज्यूज का फलस्तीनियों का है। नहीं है। और ये इशू है जो ओस्लो अकॉर्ड्स जो हुए थे पीएलओ और क्या कहते हैं इजरायली गवर्नमेंट के दरमियान, उसमें भी ये चीज बार बार आई थी। और जब भी इनकी निगोसिएशन होती है तो आती है कि फलस्तीनियों को राइट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। और नेचुरली इजरायली गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी, बिकॉज अब आपके तकरीबन 6 मिलियन फलस्तीनी तो फलस्तीन से बाहर डायस्पोरा रह रहा है, जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फलस्तीनी है। तो अगर उनको इजाजत दी जाती है फ्रॉम एन इजरायली परस्पेक्टिव, तो ऑटोमेटिकली आपके लवांट के अंदर जूस माइनॉरिटी में चले डेमोग्राफी जाते उनकी खराब हो जाती है उनके उनके मुताबिक। हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है। आई ये फिर आप। जी, आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा ये जो टू स्टेट सोल्यूशन है इसको हम संभाल के रखते हैं अगले हिस्से के लिए, क्योंकि ये जरा थोड़ी सी तवील गुफ्तगू है, सही से समझ में आ जाए। सिर्फ एक चीज मैं जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ अभी, कि अभी जो करंट सिचुएशन है, कितनी कैजुअलिटीज, नेचर ऑफ बिल्डिंग्स, क्या सूरत हाल है वहाँ अभी तक?
करंट सिचुएशन जी बहुत इट्स अ डायर सिचुएशन हमारे सबके सामने है। 35,000 डायरेक्ट कैजुअलिटीज ऑफ द करंट जेनोसाइड जो कि वहां पे हो रहा है। आपके उसमें बच्चे, खवातीन, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सब उसका हिस्सा है। इसके अलावा आपकी जो 1.5 मिलियन लोगों की आबादी है उसको डिस्प्लेस कर दिया गया है खान यूनिस से, नॉर्थ गजा से, और वो रफा के अंदर जाके फंस गए हैं। जो आखिरी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर उन्होंने सो कॉल्ड बनाया था उसके ऊपर भी अब जाके इन लोगों ने हमला कर दिया है और वो बेचारे वहां पे फंसे हुए हैं। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। रफा बॉर्डर जो है मिस्र ने बंद किया हुआ है, वहां पे उन्होंने ओवर द लास्ट 1 मंथ दीवार खड़ी कर दी है। तो फलस्तीनी वहां से भी जा नहीं सकते साइनाई की तरफ, और बाकी तीनों तरफ से हसारबंद ये इजरायली फौज आपकी बैठी हुई है। सो बेचारे चारों तरफ से आपके पैलेस्टीनियंस जो हैं घिरे हुए हैं, और क्या कहते हैं, इनके पास रिलीफ हाँ, टू अ सर्टेन डिग्री रफा के तरफ से जा रहा था, बट अगेन वो कभी जाता है, कभी इसराइलीज बंद कर देते हैं, इसराइलीज रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं रिलीफ को रोकने के लिए। रिलीफ और भी जो जो रिसेंट शायद कुछ मुल्कों ने भेजा था उन पे भी हमले हो गए, कि जो यूएस की तरफ से या कहीं से कोई रिलीफ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपने खबर सुनी होगी कि एयर ड्रॉप्स जॉर्डन ने काफी किए थे। जी 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 इवन द जी। यूएस उन एयर ड्रॉप्स को फलस्तीनी जब वहां पे जमा हुआ करते थे तो उनको लाइक कैटल इनको टारगेट किया जाता था। इजरायली ड्रोन्स वहां पे जाके जमा, जैसे ही लोग जमा होते थे वहां पे जाके टारगेट स्ट्राइक्स की जाती थी। तो सिचुएशन जो है अभी ऑन ग्राउंड तो काफी डायर है। इवन जो बिल्कुल सही। सीज फायर की अभी बातें आ रही थी जो कतर और मिस्र ने ब्रोकर कराने की कोशिश की थी, उसके अंदर हमास ने क्या कहते हैं उसको मान लिया, पर एट द लास्ट मोमेंट नेतन्याहू ने उसकी जो वर्डिंग है परमानेंट सीज फायर से बदल के उसको चेंज करके कर दिया कि हम लोग एक परमानेंट काम चाहते हैं। अब काम जो है उसको आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, ये हम्म। अगेन जो लोग जानते हैं, इसराइलीज हमेशा इंटरनेशनल लॉ को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इंटरप्रेट वेग, जितनी वेग लैंग्वेज इसराइली लॉयर्स इस्तेमाल करते हैं अपनी ताकि कोई ट्रीटीज के आपके अंदर ऊपर इंटरनेशनल। बाइंडिंग ना हो, बेसिकली ये है कि आप किसी भी तरह से वायलेट करें तो आप पर कोई बाइंडिंग ना हो। यस। सो बिल्कुल सही बात। विद और विदाउट जो बेंजामिन नेतन्याहू अभी आजकल रेटरिक बेच रहा है वो यही है कि आप बेशक सीज फायर हो भी जाए, नेतन्याहू इज नॉट स्टॉपिंग द इन्वेजन, अभी भी एज वी स्पीक ऑन गोइंग है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग अभी तक भी मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। अच्छा, अब्दुल्ला भाई, एक एस्पेक्ट जिसको मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एड्रेस करें, वो इस वॉर का जो जी रिलीजियस एस्पेक्ट है। ये जो न्योकॉन्स हैं या जो क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं वेस्ट में ज्यादातर, जो इनकी लॉबिंग है, वो इसको किस तरह जी से मजहबी जंग समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद इसका कोई मुबारक पहलू भी है, उसको जरा बताएं हमें। जी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है जो कि अक्सर लोगों को स्पेशली पाकिस्तान में नहीं पता। अ, हम लोगों को जायनिस्ट के बारे में पता है, थोड़ा बहुत होता है अंदाजा कि इसराइलीज क्या है, इसराइलीज की आइडियोलॉजी क्या सेवनी है, क्या है? बट उन हम्म। बहुत बड़ी बैकिंग फोर्स क्रिश्चियन जायनिस्ट की सूरत में होते हैं। क्रिश्चियन जायनिज्म क्या है एज ए थियोलॉजी या एज एन आइडिया? बेसिकली आपका नेपोलियनिक दौर के अंदर, यूरोप के अंदर नेपोलियन ने ही इसकी बुनियाद रखी थी। बुनियाद रखी। जब वो मिस्र कर रहा था तो वहां पे उसने आइडिया की ले डाउन किया था। उससे पहले भी लोगों ने बात की थी, बट वहां पे जरा यूरोपियन साइकी में सीमेंट हो गई थी वहां पे बात, कि हम लोगों को जेरूसलम के अंदर और ये जो लवांट का इलाका है यहाँ पे एक स्टेट ऑफ इसराइल बनाना पड़ेगा जहाँ पे यहूदी आ सके और वगैरह वगैरह। और वहां से ईसाइयों का, ईसाई जो है बेसिकली जो क्रिश्चियंस थे पहले, उनकी रिप्लेसमेंट थियोलॉजी और सुपरसेशनिज्म के अंदर ज्यादा बिलीफ था। सो ये एक और चीज है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू सुपरसेशनिज्म एंड रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, द चर्च और द क्रिश्चियन चर्च हैज नाउ रिप्लेस्ड इसराइल, और अब वो ओके। क्या कहते हैं राइटफुल एयर्स हैं। ये पहले आइडिया होती थी, बट अब जो क्रिश्चियन जायनिज्म है उसने इसको सुपरसीड करके कह दिया है कि जो भी हम लोगों ने अचीव करना है वो हम लोगों ने इसराइल के जरिए अचीव करना है, लीडिंग टू द कमिंग ऑफ द मसाया द एट द सेकंड एंड ऑफ कमिंग ऑफ द टाइम्स। मसाया। ओके। एग्जैक्ट। तो हालांकि अगर आप बाइबल को देखें तो ऐसा हरगिज नहीं है।
बाइबल के अंदर आपको आइजिया के अंदर, इज़ीकियल के अंदर और आपकी ड्यूटरोनॉमी जो है, इसके अंदर आई कैन कोट आइजिया 11:12, यस प्लीज। आइजिया 43:5-6, इज़ीकियल 37:12 और ड्यूटरोनॉमी 33। इनको आप जाके अगर पढ़ें तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि जो आइडिया ऑफ इसराइल है, जो लोगों ने जाके एक एथनिक कॉलोनियल स्टेट जो कि बिल्कुल सेकुलर है नेचर इन ऑल डिग्रीज, कहते हैं अपना आपको जूश स्टेट है बट बिल्कुल सेकुलर चलते हैं, ये कभी भी बिब्लिकल थियोलॉजी में इट वाज नॉट द प्रोरोगेटिव ऑफ द इजराइलीज टू डू। इनकी सारी जहां पे भी ये जो मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं इसके अंदर लिखा हुआ है कि God will establish Israel इट इज सपोज at टू the बी time of बाय गॉड। ओके यस। जी। तो ये एक सॉर्ट ऑफ इंसान जो है वो कोशिश कर रहा है कि मैं खुदा का रोल खुद क्या कहते जी हैं प्ले अदा करने की करूं। कोशिश। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये कहीं पे भी इनकी अपनी थियोलॉजी के अंदर भी ये नहीं है कहीं पे भी। हम्म। सो दिस इज बेसिकली अगेन ये 1948 से पहले बिल्कुल वर्ल्ड वॉर के दौर में एक आइडिया है जो कि 1890s के अंदर परवान चढ़ी थी, और उसकी जो अब कल्मिनेशन हो रही है वो आज जो आप अट्रॉसिटीज देख रहे हैं फलस्तीन के इलाके के अंदर, इसके अंदर हो रही है। बिल्कुल। अब मैं वो अगर वैसे आपकी भी बात को थोड़ा सा आसान करूं, आसान लफ्जों में, तो आप ये कह रहे हैं जी कि जो क्रिश्चियन मजहब या मसीही किताबें हैं उनमें जो जी रेफरेंसेस, यानी बेसिकली तो दुनिया में राइज निज़ाम के मुताबिक जो सेहूनी मसीही हैं वो शायद ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं एज कम्पेयर टू ज्यूइश जो लॉबी अभी इस वक्त इसराइल में है या इंटरनेशनली काम कर रही है, क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट जो है जी उनको अल्टीमेटली क्रिश्चियन जायनिज्म और जायनिस्ट से ही मिलती है। लेकिन जो है सेइंग के बिब्लिकल रेफरेंसेस से ये बात मिलती है कि अगर इस तरह का कुछ होना भी है तो वो बाय नेचर होना है, बाय एफर्ट ऑफ पर्सन नहीं होना कि किसी इंसान या किसी कौम के एग्जैक्टली एफर्ट ये की वजह गॉड का प्रोगेटिव है, इसको खुदा ने कहीं पे हुक्म नहीं दिया कि तुम एस्टेब्लिश करो। से तुम लोगों को मारना शुरू कर दो और उसके बेस पे जो है वो सेकंड कमिंग ऑफ मसाया हो एग्जैक्ट जाए। बिल्कुल ठीक है। जी ओके जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक और बात अभी आप मुझे ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने केस कर दिया था इसराइल पे, उसकी क्या थोड़ी सी तफसील अगर हमसे शेयर करें। जी और शायद नेतन्याहू पे कोई अरेस्ट अरेस्ट वारंट भी शायद। जी 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 अरेस्ट वारंट। यहाँ जी पे मैं थोड़ा सा जो व्यूअर्स हैं उनको क्लैरिफाई करना चाहूंगा प्लीज आईसीजे प्लीज। और आईसीसी के अंदर क्या है। ओके। आईसीजे जो है दो स्टेट्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे देखती है, और आईसीसी जो है वो रोम स्टैट्यूट जो है 1998 का उसके तहत चलती है, जिसके अंदर आपके कुछ पर्टिकुलर क्राइम्स हैं जिनको वो प्रोसिक्यूट करती है। उनका एक प्रोसिक्यूटर होता है जो कि जाके इन्वेस्टिगेट करता है, उनका ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर है, और फिर वो आगे प्रोसीडिंग्स चला करती है। आपके वॉर क्राइम्स हो गए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गई, जेनोसाइड हो गई, एग्रेशन हो गई, ये चीजें हैं जो कि रोम स्टैट्यूट के तहत वो ओवरसी करते हैं। आईसीसी के पास, आईसीसी के आईसीसी के पास आपने या आईसीजे के पास। इंटरनेशनल कोर्ट और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कोर्ट। फॉर जस्टिस, ये ओके। दो अलग मुख्तलिफ चीजें। जो बिल्कुल ठीक है। अरेस्ट वारंट की बात है, जो पिछले दिनों काफी खबरें आ रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी होने लगे हैं, वो आईसीसी की तरफ से बात आ रही थी, और आईसीसी को ओके अमेरिकन गवर्नमेंट ओके। काफी प्रेशराइज भी कर रही थी कि ऐसे वारंट जारी नहीं होने चाहिए। हम्म। सरप्राइजिंगली इनफ, ये भी मैं एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। अमेरिका के अंदर एक act है बकायदा, हेग इन्वेजन एक्ट के नाम से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हेग इन्वेजन एक्ट था, जिसके तहत वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी कोई भी चीज आईसीसी ने की जिसको जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ हुई, तो अमेरिका होल्ड्स द राइट टू इन्वेड द नेदरलैंड्स। या क्वाइट फनी। इंटरनेशनल लॉ तो इंटरनेशनल लॉ की कहानी तो इधर ही खत्म हो जाती है, इफ आई एम बीइंग ओके। वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, नॉट ओनली कि तो वो दिस उसको इज मानेगा नहीं, लेकिन ही होल्ड द राइट टू इन्वेड द कंट्री जस्ट बिकॉज उन्होंने उसके इंटरेस्ट के एग्जैक्ट खिलाफ में फैसला दे दिया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। यस ठीक है जी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, नाउ कमिंग बैक, अब आप मुझे ये बताएं कि जो ग्लोबल रिस्पांस है इस पे, इनिशियली ग्लोबल जी रिस्पांस और फिर इन पर्टिकुलर मुस्लिम कंट्रीज का या गल्फ का रिस्पांस, वो इस बार कैसा रहा है और जी किस तरह से मुख्तलिफ है पहले से। जी बदकिस्मती से जो अभी तक ग्लोबल
मुसलमान दुनिया के अंदर जो रिस्पॉन्स है, इट इज नॉट सफिशिएंट। अप मार्क क्या कहा जा सकता है, बिकॉज सिर्फ महज लिप सर्विस, कॉन्डमनेशन, इसके अलावा कोई कॉन्क्रीट स्टेप किसी ने भी नहीं उठाया। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल हो गया, टर्की से हो गया, काफी लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की है, बट अगेन किसी ने कोई कॉन्क्रीट एफर्ट डिप्लोमेटिकली या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के जरिए या पॉलिटिकल प्रेशर या सैंक्शंस के जरिए नहीं एक्चुअल सैंक्शन है, उठाया। बिल्कुल ठीक। मतलब टर्की ने इस हद तक किया है कि काफी अरसे के बाद जब ज्यादा प्रेशर माउंट हुआ तो उन्होंने अपने जो ट्रेड टाइज है इसराइल के साथ वो खत्म कर लिए। बट अगर मैं गल्फ स्टेट्स की बात करूं तो उन्होंने अपना नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस तो वक्ती तौर पे हॉल्ट कर दिया है, बट जो आइडिया है इसराइल की नॉर्मलाइजेशन के साथ वो खत्म नहीं हुई है अभी भी। इट इज क्वाइट ऑन द टेबल स्टिल। सिर्फ ये जो दरमियान में अभी ये इशू आ गया है, अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए, द मोमेंट ये इशू रिजॉल्व होता है, रिजॉल्व होने की तरफ जाता है, फिर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर दुनिया के अंदर देखा जाए, ये तो मैं गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहा हूँ, देयर हैव बीन ह्यूज क्रॉस पाकिस्तान, क्रॉस इंडोनेशिया, इवन इन टर्की, इजिप्ट, ऐसी ऐसी रिजीम्स जहां पे काफी सख्तियां हैं। मिस्र और जॉर्डन की मिसाल दी जा सकती है, वहां पर भी लोगों ने मतलब आके प्रोटेस्ट किया है फलस्तीनियों के हक में जाके। सो देयर हैज बीन क्वाइट ए आउटस्प्रेड एंड क्या कहते हैं रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड कि फलस्तीनियन इशू जो है वो इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इट्स अबाउट या ब्लैक कुछ भी नॉट नहीं है, इवन इट्स जस्ट वन थिंग। अबाउट रिलीजन, बिल्कुल ठीक है। Yeah, it's not even about it's basic human क्या कहते हैं बिलीफ, राइट टू लाइफ का, राइट टू पीस का, राइट टू फ्रीडम का। राइट टू इक्वालिटी, सो राइट टू आप डिग्निटी, बिल्कुल ठीक। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की आप हम लोग बात करने वाले थे, वहां पे देखिए पहली दफा हो रहा है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के यूर सीइंग यंग चिल्ड्रन जिनका वैसे भी तो ताल्लुक है ही नहीं एथनिकली या जबान का कोई ताल्लुक या नेशनैलिटी का कोई ताल्लुक फलस्तीन के साथ, पर वो कितने बच्चे और इनकरेजिंग, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। सो यस, मतलब जहां आपको नजर आ रहा है, अगेन जो आपने बात की कि इस मुस्लिम स्टेट्स जो है जहां पे उनका रिस्पॉन्स काफी दबा हुआ है या काफी इट्स नॉट अप टू द, इफ आई वर टू पुट इट अ बिट लाइटली, आपको लोगों के अंदर काफी चेंज नजर आ रहा है, स्पेशली वाया सोशल मीडिया। अमेरिका कांग्रेस के जरिए उन्होंने लॉ पास तो कर दिया कि टिकटॉक जो है अमेरिका में बैन होना चाहिए, बट टिकटॉक प्लेड अ वाइटल रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। जो ये सब कुछ वहां पे आपके जर्नलिस्ट जो काफी वो भी शहीद हुए वहां पे, उन्होंने इंफॉर्मेशन वाया टिकटॉक, वाया इंस्टाग्राम, वाया रील्स, वाया व्हाट्सएप मैसेजेस उसके जरिए निकाला था, जो इसराइल के अंदर अभी रिसेंटली अल जजीरा को बैन कर दिया गया है। अल जजीरा ने काफी बहुत अच्छा किया है इनके वायलेशंस को के लिए। इससे आई वुड आल्सो लाइक टू क्या कहते हैं रेज दिस पॉइंट एज वेल, जस्टिस फॉर ऑल एक बहुत अच्छा ऑनलाइन आईसीसी सबमिशंस का वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाके कर सकते हैं, जस्टिस फॉर ऑल। यहाँ पे आपका अगर कोई क्लेम है आईसीसी के हवाले से कि वॉर क्राइम्स हुई है या जेनोसाइड हुआ है एज पर रोम स्टैट्यूट, आपके पास वीडियोस हैं, तस्वीर हैं, वो आप जाके जमा करा सकते हैं और प्रोसिक्यूटर के ऑफिस के लिए। सो ये एक है जो कि अगर आपकी कोई एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या आप पर्सनली भी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मीजान एंड अल हक, इन्होंने रिसेंटली आईसीसी के अंदर भी पिटिशंस फाइल की है, बट दिस इज जस्ट वन थिंग दैट आई वांटेड टू एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रिसेंटली शुरू किया गया, वहां पे जरूर जाके लोगों को करना चाहिए, पोर्टल का इस्तेमाल करें और प्रोसिक्यूटर को अगर आपके पास जितनी भी वीडियो थोड़ी देर में, सॉरी ठीक है, आप जाए, सॉरी तो कोई दरमियान में दोस्त आ गए थे। अच्छा, ये जो आपने बात की है अल मीज़ान और अल हक, ये पाकिस्तान बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने ये
मूव किए हैं। जी। मैं ये पूछ रहा नहीं हूँ नहीं कि ये नहीं, मिजान और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रो जी। पैलेस्टाइन काम करती है, ठीक है। अच्छा। या मोस्टली इसके अंदर आपके जो फलस्तीनी डायस्पोरा के लॉयर्स हैं वो हैं। जी। पाकिस्तान के अंदर ये मैंने मिसाल इसलिए दी, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करना चाह रही है, काफी लॉयर्स मेरी तरह काफी है जो कि दे विल बी विलिंग टू गिव देयर सर्विसेज। आपकी लीगल एड सोसाइटी अगर करना चाहती है या कोई और बिल्कुल। अगर करना चाह रहा है, सो देयर इज अ प्लेटफॉर्म, इफ देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। ये मैं हमेशा लोगों को कहा श्योर करता श्योर, बिल्कुल ठीक है। हूँ। वी यू विल नो। रेप्लिकेट द इशू, और हम इसको मरने नहीं देंगे इंशाल्लाह। विल मेक श्योर कि इस जी। पे बात होती रहे। अच्छा, आपने बात सोशल मीडिया पे वैसे कर दी, मैंने इसको थोड़ा सा बाद में रखा था। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बॉयकॉट वाला एक रिजीम है या प्रैक्टिस है कि बॉयकॉट हम करते हैं सर्टेन सर्विसेज का, सर्टेन प्रोडक्ट्स का, और समझते हैं कि इसका कितना को इम्पैक्ट होता है। अब बॉयकॉट का जी, लोगों को जब पहली दफा शुरू में बॉयकॉट के कॉल्स फॉर बॉयकॉट की गई थी कि दिस इज समथिंग द लीस्ट आप कर सकते हैं, मतलब अगर मैं लोगों को कहूँ, आप अगर इफ आपके पास इस्तिताअत अल्लाह ताला ने आपको दी हुई ईमान है। ईमान का आखिरी दर्जा जो है वो आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी। मतलब आप अगर चैरिटी कर सकते हैं, पैसे भिजवा सकते हैं, भिजवाएं। अगर आप किसी तरीके से एड भिजवा सकते हैं, खाना भिजवा सकते हैं, कोई और तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं, करें। और ये आखिरी ईमान का दर्जा है कि कम से कम आप इसके अंदर ऐसे किसी प्रोडक्ट को खरीदने में हिस्सा ना लें जिसके प्रोसीड की वजह से आपके भाई शहीद हम्म। या आपकी बहनें या बेटियां शहीद की जाए फलस्तीन के अंदर। सो दिस इज अगेन एक कलेक्टिव सोच का एक प्रोसेस है कि आप जो है, यू आर नॉट, ये अगेन नेशनलिज्म के अंदर ये अक्सर होता है कि हम लोग एक डब्बे में बंद कौम है और हम लोग क्यों किसी और के बारे में केयर करें। बट अगेन जो हमारा दीन है वो कुछ और हमें सिखाता है बिल्कुल। कि एक उम्मत है, हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखना है, और ये आखिरी दीन का क्या कहते हैं दर्जा है जिसके अंदर आपको एटलीस्ट इतना आप कर सकते हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि इसराइल को डायरेक्टली या डायरेक्टली फायदा पहुंचा रहे हैं उनको ना इस्तेमाल करें। और इसका असर दिखने लग गया है। नो थैंक्स एक यस एप्लीकेशन है जो मैं यस यहाँ से यस यस। लोगों को बताना चाहूंगा। लोग जाएं प्ले स्टोर पे, नो थैंक्स। और अगर एप्पल डाउनलोड करें। नो थैंक्स बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। जब भी आप जा रहे हो स्टोर्स के अंदर खरीदते हुए चीजों को हमेशा चेक किया करें कि उसके ऊपर वो बॉयकॉट लिस्ट में नहीं है। काफी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। क्या वैसे तो बात, एक्सेलेंट। अजीब सी केएफसी और स्टारबक्स और मैकडोनल्ड्स, काफी इनके मतलब प्रोसीड्स कम हो चुके हैं आफ्टर दिस डिस्काउंट लगाए हुए हैं, बॉयकॉट। बड़े बड़े डिस्काउंट लगाए हुए हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एग्जैक्टली, डिस्काउंट पुरानी पुरानी जो हम लोग बचपन में सुना करते थे, हाँ, डील्स, वो उन्हीं वापस। उन्हीं कीमतों पे आ रही हैं, चल। तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन नजर आ जाए इम्पैक्ट। आप हम्म, और काफी अगर आपने चेक किया हो पाकिस्तान के अंदर, अगर आप स्टोर्स में जाएं तो काफी पाकिस्तानी ब्रांड्स जन्म लेने लग गए हैं इस बिल्कुल। बॉयकॉट की वजह से। ये मार्केट के अंदर जगह खाली हुई है, वो भरने लग गए हैं। सो हम्म, एक काफी अच्छा वो शो मैं देख रहा था, बल्कि यूट्यूब चैनल ही है, शऊर के नाम से। उन्होंने जी। किया हुआ था कि बॉयकॉट है वो मेड इन पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। सो वाह। अगर आप किसी तरीके से बॉयकॉट को अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के जरिए जोड़ सकते हैं इन दो चीजों को, तो इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। और ये आप अगेन कंट्रीब्यूट भी दिस इज कर रहे हैं और समथिंग, आप अपना भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगेन अगेन ये मैं मतलब कुछ लोग हैं जो कि सिनिकल सोच रखते हैं, जो कि होपलेस हो जाते हैं कि भाई वहां पे कत्लो गारत हो रही है, हम लोग ये मतलब ये किताबी सी क्या बातें फर्क कर पड़ रहे हैं, जाएगा। बट क्या हम्म, फर्क पड़ जाएगा। अगेन ये हम्म, सिनिकल सोच है, ये होपलेसनेस बढ़ाने वाली सोच है। आप हम्म। अगर कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना करने से ये बेहतर है आप अपने हिस्से की शम्मा जलाए रखें। तो और आई वुड, ये दिस। मतलब इस बात को रीट्रेट करते हुए कि शायद ये 2 4 10 साल पहले शायद इसका फर्क नजर ना आता हो जैसे आपने कहा, लेकिन अभी तो जी बाकायदा नजर आता है कि किस तरह से वो ब्रांड डिफेंसिव पे गए हैं, किस तरह से वो चीजें अपनी वापस एग्जैक्टली। ले रहे हैं, उनमें डिवीजन बाकायदा नजर आती है। यस। अच्छा, आखिरी दो चीजों पे हम बात करते हैं। एक तो ये जो यूएस और सिक्योरिटी काउंसिल वाला मसला है, व्हाट इज इट? जी। इसको जरा बताएं कि सिक्योरिटी काउंसिल में इशू क्या है और ये क्यों वीटो इसको यूएस करता है, और इसका क्या फायदा होगा अगर पैलेस्टीन पर परमानेंट मेंबर बन जाता है तो।
जी, लोगों ने आजकल सुना होगा कि पैलेस्टीनियन मेंबरशिप के लिए काफी जनरल असेंबली के अंदर वोट हुआ। जी। अराउंड 145 कंट्रीज ने इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन मेंबरशिप वोट दिया, और इसराइल के साथ सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ पैसिफिक के आइलैंड्स, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, इसी तरह के मुल्क थे, जिसका बाकी नाम कोई भी भी नहीं किसी को था। पता नहीं, जिसका नाम भी किसी को पता नहीं। सो ये पैलेस्टीनियन मूवमेंट की और फ्रीडम की मूवमेंट की काफी बड़ी जीत है कि आज इंटरनेशनली लोग मान रहे हैं कि हक पे कौन है और बातिल कौन है। हम्म। एक, एक्सीलेंट। ठीक है। दूसरा, अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, फलस्तीन के पास 2012 से ऑब्जर्वर स्टेटस था। इस जनरल असेंबली की जो ये रेजोल्यूशन पास हुई है, इसके बाद से जो आपकी यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां तक रसाई पैलेस्टीनियन स्टेट को अंडर द पीएलओ मिल जाएगी, जो कि ठीक है। ये अगेन इट्स अ वेरी बिग स्टेप, बट जब तक अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो करता रहेगा, फुल मेंबरशिप जो है वो लिंगर ऑन करती रहेगी, जो कि अगेन इट इज कंडेमेबल कि हम्म। जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इजरायली लॉबी, जो कि एपैक के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स में काम करती है, अमेरिकन जी। इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमिटी, उसके जरिए वहां पे यूएस कांग्रेसमैन के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि एट ऑल कॉस्ट इसराइल की मदद की जाए, इसराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो बस वो उसके जरिए क्या कहते हैं, अमेरिका मजबूर है कि वो हर दफा, और उनकी अपनी पॉलिसी भी यही है कि वो हर दफा इसराइल के लिए वीटो करते हैं। और अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो उनको, उनकी हासिल है। यहाँ पे मैं एक और चीज स्पेसिफाई करना जी। चाहूंगा। लोगों को अक्सर ये पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्यों लोग ये इस तरह यूनाइटेड नेशंस को समझते हैं कि कोई भी चीज हो जाए अकवाम मुतहदा को नोटिस लेना चाहिए। ये आप एक स्टेटमेंट है जो अक्सर सुना करते होंगे, या आलमी ताकतें नोटिस हाँ। ले ले, हाँ, आलमी ताकतों इंटरवीन को। करें। जी। एग्जैक्टली, इंसानी हकूक के इदारे exactly. जो है वो शामिल हुए। इससे ज्यादा डम स्टेटमेंट या बेवकूफाना स्टेटमेंट कोई हो ही नहीं सकती। और अगर कोई ये स्टेटमेंट बोल रहा है, या तो वो बेवकूफ है या तो वो डिसऑनेस्ट है। उसकी वजह, या हमें बिकॉज बेवकूफ बना जो रहा है। यूनाइटेड, या हमें बेवकूफ बना रहा है, एग्जैक्टली exactly. और उसकी वजह मैं क्यों व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूं, इज बिकॉज यूनाइटेड नेशंस जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर है जो स्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद विनिंग पावर्स के लिए। उन्होंने ये वर्ल्ड जी। ऑर्डर अपने लिए बनाया है। ये कोई इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है जो बाकी सबके लिए कि हम लोग बराबर हैं। द जी। यूनाइटेड स्टेट्स और गिनी बराबर नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। यूनाइटेड ना नेशंस के उनका अंदर वोट बेशक बराबर सात है, ना सात उनकी राय बराबर है, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। सो जो ये लोग समझते हैं कि पता नहीं अक़वाम मुत्तहिदा कौन सी होली पावर है जो आके हर मसला हल कर देगी, इट इज नॉट। इट इज जस्ट ए ग्लोरिफाइड डिबेटिंग सोसाइटी जहां पे जाके सारे मुल्क डिबेट्स करते हैं, और कभी कभार वहां पे एक अच्छा वेरी कानून वेल सेड। कन्वेंशन के वेरी वेल सेड। तौर पे पास हो जाता है। सो दिस इज, एज एन इंटरनेशनल लॉयर मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ। आपको अपने स्टेट के राइट्स इंटरनेशनल लॉयर्स के जरिए प्रोटेक्ट करने होते हैं, आपको लॉ फेयर करना होता है। हम्म। ये रियलिटी है आपके आज के पैराडाइम के अंदर, आज के जियोपॉलिटिकल पैराडाइम के अंदर जो शिफ्ट हुआ है, वो रियलिटी यहां पे खड़ी हुई है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन कि अक़वाम मुत्तहिदा देख लेगा, आलमी कुव्वतें देख लेगी। ये किताबी बातें, पुराने दौर की बातें, ये कोई प्रैक्टिकली इसके वेरी पीछे वेल कोई सेड। मतलब नहीं है। नहीं, एक्सेलेंट, थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल्ला भाई। ये जो पर्टिकुलर दो चार बातें आपने बताई, एपेक और आईसीजी, आईसीसी और यूनाइटेड नेशंस का रोल ग्लोबल अफेयर्स में, इन पे आई विल रिक्वेस्ट कि हम इंशाल्लाह इस सीरीज को जारी रखेंगे। और बिल्कुल जी। थ्रू आउट जिस तरह फलस्तीन पे भी जो जो अपडेट्स होती रहेंगी, वी विल कम, और हम अपनी कोशिश करेंगे अपने हिस्से की क्षमा जला के, और कम से कम चीज़ों को हाईलाइट करते रहेंगे और उस आवाज़ को रेप्लिकेट करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। और आपके थैंक आज यू। के वक्त का, इट्स बिन वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। आप आखिर में जो मैं भी कहते लोगों हैं। को, यस, अगर मैं लोगों को एक आखिरी चीज के साथ, इफ आई कैन लीव द पीपल विद दिस, प्लीज। काफी ग्रूसम वीडियोस और तस्वीर देखने को मिलती है जो आजकल मज़ालिम फ़लस्तीन में हो रहे हैं, और ये सच्चाई है, और एक बहुत सख्त सच्चाई है जिसको हम सब कलेक्टिवली फेस कर रहे हैं। और कभी कभार होपलेसनेस हो जाती है इंसान को, इंसान कमजोर है।
कभी भी कोशिश करिएगा कि हिम्मत ना हारिएगा। जो आप कर सकते हो अपनी इस्ताअत के मुताबिक, अगर आप बात कर सकते हैं बात करें, अगर आप रिलीफ पहुंचा सकते हैं, अगर आप किसी को क्या कहते हैं फंड्स पहुंचा सकते हैं। अल खिदमत चलिए। काफी अच्छा काम कर रही है, इस्लाम ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, फातिह फाउंडेशन है। इस तरह की काफी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ ना कुछ तरीके से, टर्की की काफी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पे रिलीफ पहुंचा रही है। तो खैर, फ्रीडम फ्लोटिला जो था जिसने जाना था वहां पे, वो तो क्या कहते हैं आधे रास्ते भी वापस हो गया। बट अगेन, काफी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी कोशिश कर रही है, डिस्पाइट रफा में जो हालात हुए हुए हैं, डिस्पाइट दैट हम्म, पहुंच रहा है क्या कहते हैं रिलीफ वहां पे। तो चंद कतरे ही सही, लेकिन पहुंचने चाहिए वहां तक। कोशिश करते रहिएगा और आवाज